हेलो स्टूडेंट, क्लास थर्ड इंग्लिश मीडियम चैप्टर 3 प्यूपिल एंड वर्क। इस चैप्टर में आपको पुपिल और वर्क के बारे में बताया हुआ है। देखो फर्स्ट वाले, योर फादर वांट टू डिपॉजिट मनी इन सेफ प्लेस वेर वी विल ही गो। आपके फादर आप मनी कहाँ रखते हैं जहाँ पे बिल्कुल सेफ रहती है? फ्लावर में, मेडिसिन स्टोर में, कैफ़े में, के बैंक में? तो क्या आएगा आंसर? बैंक में। आपकी यूअर मदर नीड्स मेडिसिन इन सिक वेयर वी वुड गो टू बाय द मेडिसिन। आपकी मम्मी या मेडिसिन कहाँ से लाती है? फ्लावर, कैफ़े, बैंक, मेडिसिन। मेडिसिन से कहाँ से? Every person earns money for their basic needs of life. People earn money doing some work. People do work to earn money to fulfill their basic needs. One level earn money by doing certain work which is called their occupation. What is your father's occupation? What is your mother's occupation? Different types of work people follow different occupations. Some occupations people do are service providers. These people provide useful services to the society. They are policemen who catches thieves and work for our safety. Teachers who teaches us and to help us. Doctors who treat patients. Nurses who look after the sick people and assist doctors. Firemen who help us to extinguish the fire. Postmen who carries and delivers letters. Drivers who drive the vehicles, school buses and vans. Watchmen who guard the buildings and public places. Street sellers are people who sell different things. They are stationers who sell notebooks, pencils, diaries, etc. Sellers, grocers who sell daily food and grocery items and daily utility products. Greengrocers who sell fruits and vegetables. Restaurant runners who make and sell food. मंगल, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए धन कमाता है। लोग कुछ काम करके पैसा कमाते हैं। लोग अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। अंसवन लोग डीइंग सरने वोक से पैसा कमाते हैं जिसे उनका पेशा कहा जाता है। आपके पिता का पेशा क्या है? तुम्हारी माँ का पेशा क्या है? विभिन्न प्रकार के कार्य लोग विभिन्न व्यवसायों का अनुसरण करते हैं। कुछ व्यवसाय जो लोग करते हैं वे हैं सेवा प्रदाता। ये लोग समाज को उपयोगी सेवाएं प्रदान करते हैं। वे हैं पुलिस वाले जो चोरों को पकड़ते हैं और हमारी सुरक्षा के लिए काम करते हैं। शिक्षक जो हमें पढ़ाते हैं। और दो हेल्पर डॉक्टर जो मरीजों का इलाज करते हैं। नर्सें जो बीमार लोगों की देखभाल करती हैं और डॉक्टरों की सहायता करती हैं। फायरमैन जो आग बुझाने में हमारी मदद करते हैं। डाकिया जो पत्र ले जाता है और वितरित करता है। वाहन, स्कूल बस और वैन चलाने वाले चालक। चौकीदार जो इमारतों और सार्वजनिक स्थानों की रखवाली करते हैं। स्त्री विक्रेता वे लोग हैं जो अलग अलग चीजें बेचते हैं। वे हैं स्टेशनर जो नोटबुक, पेंसिल, डायरी आदि बेचते हैं। विक्रेता ग्रोसर्स जो दैनिक भोजन और किराना सामान बेचते हैं और दैनिक उपयोगिता उत्पाद। ग्रीन ग्रोसर्स जो फल और सब्जियां बेचते हैं। भोजन बनाने और बेचने वाले रेस्तरां धावक। Florists who sell flowers. Drapers who sell clothes. Makers or producers of things. They are the people who make or produce different things. They are tailors who stitch clothes. Carpenters who make furniture. Bakers who bake cakes, biscuits, etc. Farmers who grow and yields crops in fields. Masons who build buildings and houses. Potters who make pots we use for different purposes. Menders and fitters repair different things we use. They are mechanics who repair vehicles. For electricians who repair faulty wires and plugs. Plumbers who repair leaking pipes and taps. Cobblers who repair worn out shoes. Entertainers. Some people are entertainers as they earn their living by entertaining the audience. They are
Jokers who do different things to make us laugh. Dancers who dance. Singers who sing songs. Magicians who do different magic shows. Musicians who compose beautiful music. Actors who act in plays and films. 19. फूल बेचने वाले फूल वाले. कपड़े बेचने वाले ड्रेपर. चीजों के निर्माता या निर्माता वे लोग हैं जो विभिन्न चीजों का निर्माण या उत्पादन करते हैं. वे हैं कपड़े सिलने वाले दर्जी. बढ़ई जो फर्नीचर बनाते हैं. केक, बिस्कुट आदि सेंकने वाले बेकर. किसान जो खेतों में फसल उगाते हैं और उपज देते हैं. राजमिस्त्री जो भवन और घर बनाते हैं. कुम्हार जो बर्तन बनाते हैं हम विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग करते हैं. मेंडर और फिटर. मेंडर्स और फिटर हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न चीजों की मरम्मत करते हैं. वे हैं मैकेनिक जो वाहनों की मरम्मत करते हैं. उत्तर 4 बिजली मिस्त्री जो खराब तारों और प्लग की मरम्मत करते हैं. लीकेज पाइप और नल की मरम्मत करने वाले प्लम्बर. घिसे पिटे जूतों की मरम्मत करने वाले मोची. मनोरंजनकर्ता. कुछ लोग मनोरंजन करने वाले होते हैं क्योंकि वे दर्शकों का मनोरंजन करके अपना जीवन यापन करते हैं. वे हैं जोकर हमें हंसाने के लिए अलग अलग काम करते हैं. नर्तक जो नृत्य करते हैं. गायक जो गीत गाते हैं. अलग अलग मैजिक शो करने वाले जादूगर. संगीतकार जो सुंदर संगीत की रचना करते हैं. नाटकों और फिल्मों में अभिनय करने वाले अभिनेता. 19. They all work to make our life easy and comfortable. They also help us in our daily life and entertain us. Chatha household work wapa in many families, both the parents or one of them work to earn money. In most families, mother is a housewife or a homemaker. She cooks food, does the household chores and looks after the children. The father also helps in some household chores. Parents help their children in their studies as well. They also attend school functions. Elderly people in a family stay at home. Grandparents look after the children when both the parents go for work. For example, the grandmother cooks food. Grandfather drops the children at the bus stop and picks them up from school in the evening. Children can also help their parents by watering plants, dusting the furniture, keeping their clothes in the cupboard, keeping their toys in place, etc. Leisure time. The time when you are free to do an activity of your choice or just relax is called a leisure time. During this time, we do something which we like to do. Doing something for fun and for relaxing is known as recreation. It gives us pleasure and re-energizes us to do our work. Circus. A family spends the leisure time by going out together to watch a movie or to amusement parks, visiting a fair, circus, zoo, restaurant or some relative's house. They all work to make our life easy and comfortable. They also help us in our daily life and entertain us. Chatha household work wapa in many families, both the parents or one of them work to earn money. In most families, mother is a housewife or a homemaker. She cooks food, does the household chores and looks after the children. The father also helps in some household chores. Parents help their children in their studies as well. They also attend school functions. Elderly people in a family stay at home. Grandparents look after the children when both the parents go for work. For example, the grandmother cooks food. Grandfather drops the children at the bus stop and picks them up from school in the evening. Children can also help their parents by watering plants, dusting the furniture, keeping their clothes in the cupboard, keeping their toys in place, etc. Leisure time. The time when you are free to do an activity of your choice or just relax is called a leisure time.
During this time, we do something which we like to do. Doing something for fun and for relaxing is known as recreation. It gives us pleasure and re-energizes us to do our work. Circus: a family spends the leisure time by going out together to watch a movie or to amusement parks, visiting a fair, circus, zoo, restaurant or some relative's house. वे सभी हमारे जीवन को आसान और आरामदायक बनाने के लिए काम करते हैं। वे हमारे दैनिक जीवन में भी हमारी मदद करते हैं और हमारा मनोरंजन करते हैं। चौथा, घरेलू काम: कई परिवारों में माता पिता या उनमें से एक दोनों पैसे कमाने के लिए काम करते हैं। अधिकांश परिवारों में माँ गृहिणी या गृहिणी होती है। वो खाना बनाती है, घर का काम करती है और बच्चों की देखभाल करती है। पिता घर के कुछ कामों में भी मदद करते हैं। माता पिता भी अपने बच्चों की पढ़ाई में मदद करते हैं। वे स्कूल के कार्यक्रमों में भी शामिल होते हैं। एक परिवार में बुजुर्ग लोग घर पर ही रहें। जब माता पिता दोनों काम पर जाते हैं तो दादा दादी बच्चों की देखभाल करते हैं। उदाहरण के लिए, दादी खाना बनाती हैं। दादाजी बच्चों को बस स्टॉप पर छोड़ते हैं और शाम को उन्हें स्कूल से ले जाते हैं। बच्चे पौधों को पानी देकर, फर्नीचर को झाड़कर भी अपने माता पिता की मदद कर सकते हैं। अलमारी में अपने कपड़े रखना, अपने खिलौनों को जगह पर रखना आदि। आराम का समय वह समय जब आप अपनी पसंद की गतिविधि करने के लिए या बस आराम करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसे फुर्सत का समय कहा जाता है। इस दौरान हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमें करना अच्छा लगता है। मनोरंजन के लिए और आराम के लिए कुछ करना मनोरंजन के रूप में जाना जाता है। यह हमें खुशी देता है और हमें अपना काम करने के लिए फिर से सक्रिय करता है। सर्कस: एक परिवार फिल्म देखने या मनोरंजन पार्क में एक साथ बाहर जाकर, मेले, सर्कस, चिड़ियाघर, रेस्तरां या किसी रिश्तेदार के घर जाकर फुर्सत का समय बिताता है। Child labor: there are many children in our country who want to go to school but cannot because their parents do not have enough money to send them to school. Instead, they are sent to work to earn money. Since they are not educated, they earn money by cleaning cars, selling things on streets, working at small restaurants and working as laborers in factories. This practice is called child labor. Measures for preventing child labor: the practice of child labor has been banned by the Government of India. Many organizations work to free children working in homes, tea shops, factories and other places. NSS. Hill Government of India has also taken important steps to end child labor. The government has launched a program called the Sarva Shiksha Abhiyan. Under this program, children get free education besides uniforms, bags and books. Midday meals are also served to the children who attend classes. बाल श्रम: हमारे देश में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाना तो चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उनके माता पिता के पास इतना पैसा नहीं है कि उन्हें स्कूल भेज सकें। इसके बजाय उन्हें पैसा कमाने के लिए काम पर भेजा जाता है। चूंकि वे शिक्षित नहीं हैं, इसलिए वे कारों की सफाई, सड़कों पर चीजें बेचकर, छोटे रेस्तरां में काम करके और कारखानों में मजदूर के रूप में काम करके पैसा कमाते हैं। इस प्रथा को बाल श्रम कहते हैं। बाल श्रम को रोकने के उपाय: भारत सरकार द्वारा बाल श्रम की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कई संगठन घरों, चाय की दुकानों, कारखानों और अन्य जगहों पर काम करने वाले बच्चों को मुक्त करने के लिए काम करते हैं। भारत सरकार ने भी बाल श्रम को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है।
इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को यूनिफॉर्म, बैग और किताबों के अलावा मुफ्त शिक्षा मिलती है। कक्षाओं में आने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन भी परोसा जाता है। बाल श्रम हमारे देश में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाना तो चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उनके माता पिता के पास इतना पैसा नहीं है कि उन्हें स्कूल भेज सकें। इसके बजाय उन्हें पैसा कमाने के लिए काम पर भेजा जाता है। चूंकि वे शिक्षित नहीं हैं, इसलिए वे कारों की सफाई, सड़कों पर चीजें बेचकर, छोटे रेस्तरां में काम करके और कारखानों में मजदूर के रूप में काम करके पैसा कमाते हैं। इस प्रथा को बाल श्रम कहते हैं। बाल श्रम को रोकने के उपाय भारत सरकार द्वारा बाल श्रम की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कई संगठन घरों, चाय की दुकानों, कारखानों और अन्य जगहों पर काम करने वाले बच्चों को मुक्त करने के लिए काम करते हैं। भारत सरकार ने भी बाल श्रम को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को यूनिफॉर्म, बैग और किताबों के अलावा मुफ्त शिक्षा मिलती है। कक्षाओं में आने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन भी परोसा जाता है। बाल श्रम हमारे देश में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाना तो चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उनके माता पिता के पास इतना पैसा नहीं है कि उन्हें स्कूल भेज सकें। इसके बजाय उन्हें पैसा कमाने के लिए काम पर भेजा जाता है। चूंकि वे शिक्षित नहीं हैं, इसलिए वे कारों की सफाई, सड़कों पर चीजें बेचकर, छोटे रेस्तरां में काम करके और कारखानों में मजदूर के रूप में काम करके पैसा कमाते हैं। इस प्रथा को बाल श्रम कहते हैं। बाल श्रम को रोकने के उपाय भारत सरकार द्वारा बाल श्रम की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कई संगठन घरों, चाय की दुकानों, कारखानों और अन्य जगहों पर काम करने वाले बच्चों को मुक्त करने के लिए काम करते हैं। भारत सरकार ने भी बाल श्रम को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को यूनिफॉर्म, बैग और किताबों के अलावा मुफ्त शिक्षा मिलती है। कक्षाओं में आने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन भी परोसा जाता है।